No, Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Zubair Ahmed. Today we start cyclic group. Now you already know about group and subgroup. What is a group? Any non-empty set G with binary operation steric defined on G. Then this ordered pair is called a group if it satisfies three properties. Number one, associativity. Number second, existence of identity. Number third, inverse of each element. If these three properties, satisfy any ordered pair. Any ordered pair means non-empty set with binary operation. Then this ordered pair is called group. If again commutative property also satisfy means A steric B equal to B steric A, then such a group is called abelian group. And then subgroup. What is subgroup? Any subset of group G which satisfied all properties of group G with the same binary operation, then each subset of G is called a subgroup. Okay. Now, and we also did some examples of group, the set of integers and binary operation addition is a group, and set of integer binary operation is multiplication is not a group. Why set of integer with binary operation multiplication not a group? Because inverse of each element not present in a Z. What is inverse of 1? Inverse of 1 is 1. What is inverse of 2? Inverse of 2 is 1 upon 2. But 1 upon 2 not belongs to set of integers. And what is inverse of 3? 1 upon 3. 1 upon 3 also not present in Z. So set of integer binary operation defined as a multiplication is not a group. Again, set of integer binary operation is addition is a group. And cube root of unity 1 omega square, this also form a group with respect to binary operation as a multiplication. There is 1 omega and omega square, and also fourth root of unity 1 minus 1 iota minus iota, this also form a group with respect to multiplication. Now comes on next topic, cyclic group. Now what is cyclic group? Means any group which is generated by a single element. A group which is generated by a single element is called a cyclic group. Means ऐसा group जो एक एलिमेंट से जनरेट हो, एक एलिमेंट से जो पूरा ग्रुप बनाए, उसको हम क्या कहेंगे? साइक्लिक ग्रुप कहेंगे. ठीक है, या आप यूं ले लें कि कोई हम एक एलिमेंट ले लें, उसके ऊपर हम पावर्स रखते जाएं, इंटीग्रल पावर, तो हर पावर पे हमें डिफरेंट एलिमेंट्स मिलते जाएंगे. सपोज करें कोई हम एलिमेंट ले लें जी, स्मॉल जी बिलोंग्स टू ग्रुप जी. अगर उसके ऊपर हम इंटीग्रल पावर दें 0, अगर 0 देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 1.
अगर 1 देंगे तो सेम एलिमेंट मिलेगा, अगर 2 देंगे तो जी स्क्वायर, जी क्यूब, जी थ्री, तो ये हमें डिफरेंट एलिमेंट्स मिलते जाएंगे। अगर कोई ऐसा ग्रुप हो जिसमें से कोई एक एलिमेंट उठाए, उसके ऊपर हम इंटीग्रल पावर देते जाएं, तो उसके जो पावर्स देंगे डिफरेंट एलिमेंट्स बनेंगे, वो अगेन ग्रुप बनाए, तो उसको हम कहेंगे साइक्लिक ग्रुप। मींस एक ग्रुप जो हमने उठाया जी, उसमें से क्या बना, G1, G2, G3, G4, G5, Gn एंड Gn से Gn, पूरी साइकिल बन गई, तो इस ग्रुप को हम कहेंगे साइक्लिक ग्रुप। इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या है, अ ग्रुप which is generated by a single element is called cyclic group. इसके अलावा और डेफिनेशन क्या है, a cyclic group are group in which every element is a power of some fixed element. मीन्स हर एलिमेंट क्या होगा, पावर होगा किसी फिक्स एलिमेंट का, और every element is multiple of some fixed element if we take addition as an operation. हाँ, अगर हम बाइनरी ऑपरेशन, अगर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं, तो वो हर एलिमेंट कैसे मिलेगा, पावर ऑफ सम फिक्स एलिमेंट। अगर हम बाइनरी ऑपरेशन एडिशन ले रहे हैं, तो एवरी एलिमेंट इज मल्टीपल ऑफ सम फिक्स एलिमेंट। तो इन केस ऑफ एडिशन हम क्या करेंगे, इन जो फिक्स है वो एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर हमारे पास ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, तो हम क्या करेंगे, जो एक एलिमेंट है उसके ऊपर पावर हम n देंगे। ठीक है, इफ G contain an element G such that G equal a group generated by such that G equal to group generated by G, then we say G is a cyclic group. This is notation for cyclic, you know, angle brackets. Here in angle brackets, here is written G. It means G is a group which is generated by small g. Okay, and this G is called generator of this group. Means how we read this, G is a cyclic group generated by element G, and this G also belongs to G. क्योंकि साइक्लिक ग्रुप में क्या है, अगर जी हमारे पास कोई ग्रुप है, उसमें से कोई एक एलिमेंट हम उठाएं स्मॉल जी, अगर मल्टीप्लिकेशन है तो उसके ऊपर पावर हम देते जाएंगे, तो हमें बाकी ग्रुप के एलिमेंट्स मिल जाएंगे। तो ऐसे ग्रुप को हम कहेंगे साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय जी। अगर ग्रुप एडिशन में होगा तो यहाँ पे n मल्टीप्लाई करेंगे, और हमें हर n मल्टीप्लाई करने से डिफरेंट एलिमेंट मिलेगा, जो एलिमेंट वो सेट बनाएगा वो क्या होगा, साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय दिस। दिस इज सिंपल डेफिनेशन ऑफ साइक्लिक ग्रुप। नाउ सपोज यू टेक एग्जांपल, नाउ लास्ट टाइम यू डिड cube root of unity. What is cube root of unity? Cube root of unity means 1 omega and omega square. Suppose G is a group whose elements are 1 omega omega square, and this G form a group with respect to multiplication. We already know. Now, if 1 omega omega square is a group with respect to multiplication, then it means it must satisfy all properties of the group. What is, if 1 omega omega square is a group, it means what is, now associative laws hold is simple, 1 then multiply omega into omega square equal to 1 into omega square. Associative laws hold. What is identity in this group? 1 is identity, and 1 is identity, and identity belongs to G. Inverse of each element. What is inverse of 1? Inverse of 1 is 1.
What is the inverse of omega? Inverse of omega is omega square, because omega multiplied by omega square, we get omega cube, and omega cube equal to 1. You have already done in first year class. Again, what is inverse of omega square? Inverse of omega square is again omega, because omega square into omega is omega cube, and omega cube equal to 1. It means G is a finite group with respect to multiplication. Now you check this omega and omega square, this G form a cyclic group or not. Now, what is definition of cyclic group? A group generated by a single element. Suppose you take omega. Omega means G is a group generated by omega, then omega is generator. Now you check, suppose omega power 1. What is omega power 1? Is omega. What is omega square? Is omega square. What is omega cube? Omega cube equal to 1. It means if you put omega power 1, you get same omega, omega square, omega cube equal to 1. It means we get all elements of group G. It means G is a cyclic group generated by omega. Similarly, you can easily check fourth root of unity is isocyclic group generated by iota. And one important thing, if G is a generator of any group, then its inverse also generator. G is a generator of any group, then inverse of G must be generator of same group. It means number of generator in any infinite group is at least, it means at least 2 generator in every group, every cyclic group, because one is G and one is G inverse. But if G is a not finite group, means infinite group, number of elements are infinite, then such type of group have 2 generator, one is G and one is G inverse. If group is finite, then generators are more than 2. Okay. Now, if G is a multiplicative group and G belongs to G, then the subgroup H generated by G is H subgroup generated by this element, and this is G power n when n belongs to Z. This is mathematical notation when group is multiplicative. Okay, G is a generator, and how we get this group? G power n. What is n? N belongs to set of integer. Suppose you put n is integer, maybe n is 0. Then what we get? G power 0 is 1. Again, G power 1. So G power 1 is G7. N is 2. G square, we get second element. N equal to Z means n is 3. G cube is another element. If we put different values of Z, if we get same group G, then G is called generator of this group. Now, if in case of additive group, we will now simple multiply G, not integral power. This is additive notation. This is multiplication notation. Now, in cube root of unity, 1 omega omega square, this is a multiplicative group. That's why we take power, and W is a generator. And here mg means n multiplied by G. And what is n? N is any integer, maybe 0, -1, -2, or -3, and so on. Okay, you remember both mathematical expression for multiplicative group and additive group. Now let G be a multiplicative group and X belongs to G. Any subgroup that contain X must also contain in its inverse is also
also has to contain the identity and to become closed under multiplication. It has to contain all powers of x. मीन्स अगर g हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप है और x कोई भी एलिमेंट है g का, तो हम कोई भी सब ग्रुप लें तो जाहिर है सब ग्रुप होगा तो उसमें ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज होंगी। x होगा तो उसका इनवर्स भी होगा क्योंकि अगर ग्रुप है, और उसमें आइडेंटिटी भी होगी। तो मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप में आइडेंटिटी क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, तो और उसमें क्या होगा? सारे पावर होंगे x के, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स फोर, और उसके एक्स सेम भी होगा और नेगेटिव पावर भी होंगे x माइनस वन, एक्स पावर माइनस टू एंड x माइनस थ्री। This set of all integral power of G is the smallest subgroup of G containing X. We call it cyclic group generated by X. अगर X जनरेट हो रहा है, कोई भी ग्रुप जनरेट हो रहा है X से, X जनरेटर है जिसको हम एंगल ब्रैकेट्स में लिख रहे हैं, तो उसका जो सेट बनेगा वो इस तरह बनेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप में अगर आप X को पावर 0 करेंगे तो 1 मिल जाएगा, X का पावर 1 करेंगे तो, अगर x का पावर 1 करेंगे तो x मिलेगा, x का पावर 2 करेंगे तो x स्क्वायर मिलेगा, अगर x का पावर -1 करेंगे तो x पावर -1, x माइनस टू, x माइनस थ्री। अब ये क्या है? हमें एक सेट मिल गया जो x से जनरेट हो रहा है। अब मे भी इसमें कुछ एलिमेंट सेम भी हो, बस सेट में सेम एलिमेंट हम नहीं लिखते, बाकी जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो अगेन ग्रुप, वो सेम ग्रुप बनाएंगे जो G था। तो इट मींस जो x क्या होगा? हमारा जनरेटर हो गया। इसका एग्जांपल जैसे मैंने 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दिया था आपको, ऐसे इसका एग्जांपल और क्या है? फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है? अगर साइक्लिक ग्रुप कैन हैव मोर देन वन जनरेटर, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया अगर x जनरेटर है तो उसका इनवर्स -x भी जनरेटर होगा। इफ द जनरेटर G हैज ऑर्डर n, अगर कोई एलिमेंट G हमारे पास उसका ऑर्डर n है, then G is a group generated by G is a finite cycle group order n. If generator G has infinite order, then G is an infinite cycle group. ठीक है, अगर G का ऑर्डर फाइनाइट होगा तो हमारे पास जो साइक्लिक ग्रुप होगा वो भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होगा। अगर G का ऑर्डर इनफाइनाइट होगा तो जो साइक्लिक ग्रुप होगा वो भी इनफाइनाइट ऑर्डर होगा। अच्छा, G का ऑर्डर क्या है? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स? इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है कि अगर G कोई भी एलिमेंट है किसी ग्रुप का, उस एलिमेंट का ऑर्डर हम कैसे फाइंड करेंगे? उस G के ऊपर हम इन पावर देंगे। n क्या है? लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। क्या है? लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। हम देखेंगे G के ऊपर पावर जो देंगे इंटीजर, स्टार्टिंग करेंगे 1 मींस 1 पे तो सेम 1 आएगा, 2 3 4 5 या जो भी देंगे, अगर जिस पे G पावर n इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाए तो वो उसका पावर होगा। जैसे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर में ओमेगा का पावर 1 देंगे तो ओमेगा आएगा, ओमेगा को स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आएगा, ओमेगा को क्यूब करेंगे तो 1 आ जाएगा। मींस ओमेगा के पावर 3 आया तो रिजल्ट आइडेंटिटी आई, तो ओमेगा का पावर क्या हो गया? 3, बिकॉज़ n इज 3। इसी तरह से 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी में आयोटा को पावर 4 देंगे तो 1 आएगा, तो आयोटा का पावर क्या होगा? 1। मींस ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट क्या हो गया? 4 रूट ऑफ यूनिटी में 4, क्यूब रूट में 3। इसी तरह से ये कह रहा है कि G का ऑर्डर, जो G का ऑर्डर होगा वही साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर होगा। अगर G का ऑर्डर इनफाइनाइट होगा, इट मींस there does not exist any n such that G power n equal to identity, means ऐसा कोई भी n exist नहीं हो रहा जिसपे एलिमेंट आइडेंटिटी के बराबर आए, तो उसको हम इनफाइनाइट ऑर्डर कहेंगे। जब इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होगा तो उसमें 2 ही जनरेटर होंगे, एक G एक उसका इनवर्स। अगर साइक्लिक ग्रुप फाइनाइट होगा तो उसमें मोर देन 2 जनरेटर्स होंगे। अब एग्जांपल देख रहे हैं, क्लासिक एग्जांपल ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन। अब अंडर एडिशन में अब साइक्लिक ग्रुप देखें क्या है। अब 1 क्या है? जनरेटर है, देख लें,
ये 1 जनरेट हो रहा है, पूरा सेट कर रहा है। n क्या है, सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, और ये जनरेटर है तो ये सेम रखा। अब इसमें n की वैल्यू डिफरेंट रखते जाए, मे बी नेगेटिव, पॉजिटिव, 0 सारी रखेंगे। अब देखें 1 रखेंगे तो 1 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 2, 3 रखेंगे तो 3, 4 रखेंगे तो 4, नेगेटिव आ जाए -1 -2 तो हमें क्या मिल जाएगा, पूरा सेट ऑफ इंटीजर्स मिल जाएगा। तो 1 क्या होगा, जनरेटर। अच्छा 1 का इनवर्स क्या है, इन एडिशन -1, तो -1 भी इसका जनरेटर होगा। मगर ये ग्रुप क्या है, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, तो उसमें जनरेटर ये 2 ही होंगे, इसके अलावा और कोई जनरेटर नहीं होगा। ओके, अब द इंटीजर मॉड्यूलो एंड फॉर्म अ साइक्लिक ग्रुप अंडर एडिशन। अब ये जो साइक्लिक ग्रुप है ये भी क्या है, हमारे पास साइक्लिक ये भी साइक्लिक ग्रुप है मॉड्यूलो एन के। तो इसके एलिमेंट इसको हम कैसे लिखते हैं, ए कॉन्जुगेंट बी मॉड्यूलो एन, मींस ए माइनस बी को डिवाइड करेगा एन, ये भी साइक्लिक ग्रुप बनाता है। ये भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। अब जैसे हम कहेंगे Z7, अब Z7 में कौन से एलिमेंट आएंगे, 0 1 2 3 4 5 6, 7 एलिमेंट्स आएंगे। और ये 0 सिंपल एलिमेंट नहीं है, ये क्या है, क्लास है। 0 को हम लिखते हैं 0 बार, 1 ऊपर बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, ये हर कोई क्या है, क्लासेस होते हैं सेट ऑफ इंटीजर को जो पार्टीशन करते हैं। एवरी नॉन जीरो एलिमेंट जनरेटेड बाय द ग्रुप। अब देखें, अब इसमें हर एलिमेंट ग्रुप को जनरेट कर रहा है, तो इसमें कितने जनरेटर है, 7। अब 0 चेक करें, ये भी जनरेटर है, 1 भी जनरेटर है, 2 भी जनरेटर है, 3 भी जनरेटर है, 4 5 6 7। और अब Z6 में देखें, Z6 में कौन सा एलिमेंट है, 0 1 2 3 4 5। अब इसमें जनरेटर कौन सा, सिर्फ 1 और 5, इसके अलावा कोई जनरेटर नहीं है। अगर Z5 में देखें, इसमें कौन से एलिमेंट है, 0 1 2 3 4, साइक्लिक ग्रुप अंडर एडिशन। और इसके जनरेटर अगर हम फाइंड करें, अब जनरेटर देखें, पहले हम 0 का चेक करते हैं। अब ठीक है, 0 कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, 0 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि एडिटिव ग्रुप है तो इसमें क्या आएगा, एन ए, क्या आएगा, एन और ए आएगा। तो इसमें हमने ए क्या उठाया, 0, एन क्या है 1 2 3, तो 0 0 आ रहा है। सेम हमारे पास ए क्या है, यहाँ पे अगर यहाँ पे ए क्या था, 0, यहाँ पे ए क्या है 1। आप इंटीजर सेम 1 2 3 4 5 6 बनेंगे मिलके। अगेन 2, ए क्या है 2, सेम इंटीजर 1 2 3 4 5 6, अगेन 3, अगेन 4, जितने भी एलिमेंट सब उठाए। अब देखिए इसमें हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, तो ये जनरेटर नहीं है। अब इसमें जब 1 रखा तो क्या मिला, 1 2 3 4, तो इट मींस 1 जनरेटर हो गया, क्योंकि 1 से हमें सारा सेट मिल रहा है Z5 का। अगेन 2 पे आए तो 2 में क्या मिला, 2 4 1 1 2 3 4। अब इसमें देखें, हमें इसमें भी पूरा सेट मिल रहा है जब 2 रख रहे हैं जनरेटर, जब 3 रख रहे हैं इसमें भी पूरा मिल रहा है, 4 रख रहे हैं तो उसमें भी सारे एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है। तो इट मींस अब देखें Z5 है, तो अगर हम इसमें 8 करेंगे, अब देखें ये क्या, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या है, अगर 2 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, 6, और 6 को डिवाइड करेंगे 5 से तो रिजल्ट 1 आ जाएगा। क्योंकि मॉडुलो 5 है तो जो भी एलिमेंट 5 से बड़े होंगे, 5 होंगे या 5 से बड़े होंगे, उससे 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर 5 आ गया तो 5 को डिवाइड 5 से करें, रिमाइंडर क्या बचा, 0। अब जैसे 10 है, 10 को डिवाइड करें 5 से, रिमाइंडर 0। 8 है, 8 को 5 से करेंगे डिवाइड तो रिजल्ट क्या आएगा, 3। 6 है, 6 को 5 से डिवाइड करेंगे, रिजल्ट 1। अब बाकी 5 से छोटे एलिमेंट सेम होंगे। ये मॉड्यूलो n में जो भी n होगा वो उससे डिवाइड होगा, ठीक है। अब इसमें चाहे इसमें क्या है कि हमारे पास कौन से जनरेटर आ रहे हैं, ये 1 2 3 4, these are the generator of Z5. Okay, now fourth root of unity is cyclic group under multiplication. अब ये fourth root of unity में कौन से एलिमेंट होते हैं, 1 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। इसमें जनरेटर कौन से, आयोटा एंड माइनस आयोटा। अब आयोटा पे आप देख लें, पावर रख लें, 0 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 रखेंगे तो आयोटा सेम,
आयोटा स्क्वायर माइनस वन, आयोटा क्यूब, अब नेगेटिव भी रख सकते हैं पावर्स को, तो ये पूरा ग्रुप बनाएगा। तो उसके जनरेटर्स क्या होंगे, आयोटा एंड माइनस आयोटा। nth रूट ऑफ यूनिटी, लास्ट आपको याद है क्लास में मैंने nth रूट ऑफ यूनिटी करवाई थी डी मोरिस थ्योरम यूज करके, तो उसका फाइनल क्या आया था nth रूट यूनिटी में, z इक्वल टू e रेज टू आयोटा 2k पाई अपॉन n। तो इसमें अब k की वैल्यू डिफरेंट रखते जाए, तो फर्स्ट रूट क्या मिलेगा 1 बिकॉज k इक्वल टू 0, k इक्वल टू 1 सेकंड, k इक्वल टू 2 थर्ड, k इक्वल टू 4 अप टू n माइनस 1। टोटल कितने रूट मिलेंगे n, जिसको हम यूं लिख सकते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर n माइनस 1। अब ये क्या nth रूट ऑफ यूनिटी, ये भी साइक्लिक ग्रुप है, तो उसको और पहली बात ये ग्रुप है, उसके बाद ये सारी ग्रुप की प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास क्या है, रिंग है। अब ये पहले हमें क्या डिस्कस किया, ग्रुप, व्हाट इज ग्रुप, उससे पहले व्हाट इज बाइनरी ऑपरेशन, देन ग्रुप, देन एनी सबसेट ऑफ ग्रुप व्हिच आल्सो सैटिस्फाई प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप इज कॉल्ड सब ग्रुप। सब ग्रुप के बाद उसके हमने स्पेशल ग्रुप डिस्कस किए, चैनल लीनियर ग्रुप, स्पेशल लीनियर ग्रुप, क्लाइन ग्रुप, क्वार्टरनियन ग्रुप। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, अगेन एक और अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है रिंग। अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, ऑर्डर पेयर मींस एक नॉन एम्प्टी सेट और उसके साथ बाइनरी ऑपरेशन। अगर हमारे पास एक ऑर्डर ट्रिपल हो, क्या हो, तीन चीजें हो, ऑर्डर ट्रिपल, एक जी नॉन एम्प्टी सेट हो और दो बाइनरी ऑपरेशन हो। अगर एक बाइनरी ऑपरेशन है तो ग्रुप हो गया, अगर दो बाइनरी ऑपरेशन होंगी तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, रिंग हो जाएगा। रिंग क्या है, रिंग is an order triple with non-empty sets and two binary operation defined on it, and if satisfies some properties, then such order triple is called a ring। ठीक है, non-empty set or together with two binary composition, addition and multiplication is said to be ring if the following axioms are satisfied। अब पहला क्या है कि एसोसिएटिव हो विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि अब देखिए इसमें दो बाइनरी ऑपरेशन है, पहली एडिशन है दूसरी मल्टीप्लिकेशन है, तो एसोसिएटिव हो विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑपरेशन। ठीक है, कम्यूटेटिव हो विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑपरेशन मींस एडिशन। there exists some element 0 called 0 in R such that a plus 0 and 0 plus a equal to a for all a belongs to R, means 0 identity, additive identity भी हो वहां पे, means 0 with respect to addition, और हर एलिमेंट का इनवर्स भी हो, means additive identity भी हो, additive inverse भी हो। तो ये ऑर्डर ट्रिपल रिंग कब कहलाएगा, जब जो R है नॉन एम्प्टी सेट वो विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑपरेशन एसोसिएटिव होगा, कम्यूटेटिव होगा, एडिटिव आइडेंटिटी होगी और इनवर्स होगा। उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू सेकंड ऑपरेशन एसोसिएटिव होगा और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। ठीक है, ये 6 प्रॉपर्टी है। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एसोसिएटिव होगा, कम्यूटेटिव होगा, आइडेंटिटी होगी 0, इनवर्स हर एलिमेंट का होगा। विथ रेस्पेक्ट टू सेकंड ऑपरेशन दो प्रॉपर्टीज होंगी, क्या होगा, एसोसिएटिव होगा विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड करेंगे, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव एज वेल एज राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। हियर a डॉट b प्लस c एंड b प्लस c डॉट a, तो ऐसे ऑर्डर ट्रिपल को हम रिंग कहेंगे। Here since we said that addition and multiplication of binary composition are, it is understood that Killoyer property with respect to these hold in R। क्योंकि आप देखें इन दोनों में मैंने Killoyer property नहीं बताई, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया कि R with respect to addition and multiplications are binary operations। अगर मैं binary operation कह रहा हूँ it means Killoyer property hold होगी। हाँ, अगर मैं binary operation नहीं कहूँ तो फिर Killoyer property पहले चेक करनी पड़ेगी। Killoyer property means a plus b belongs to g, अगेन a into b belongs to g। अगर दो एलिमेंट उठा लें उनको ऐड करें उनका रिजल्ट g या r में आएगा, अगेन दो एलिमेंट उठा उनको प्रोडक्ट करने उनका रिजल्ट भी r में आएगा। ठीक है,
अब इसमें दो ऑपरेशन यूज हो रही हैं और ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है ये ऑर्डर हमारे पास क्या है, ऑर्डर ट्रिपल है। अब इसमें कुछ और डेफिनेशन पढ़े, अ रिंग और इज कॉल्ड कम्यूटेटिव रिंग इफ ए बी इक्वल टू बी है। ठीक है, अगर ये रिंग कम्यूटेटिव कब होगा, जब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होगी विद रिस्पेक्ट टू सेकंड ऑपरेशन फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ऑल। ठीक है, मगर आपको पता है जो आइडेंटिटी होती है वो आइडेंटिटी लेफ्ट और राइट दोनों अप्लाई हम कर सकते हैं इसमें। ठीक है, नाउ वी से दैट R is with unity, we say that R is a unity. Unity is a general denoted by one, also called unit element or multiplicative identity. If unity exists in a ring, then it must be unique. ठीक है, अब यूनिटी का मतलब क्या है, क्योंकि आप देखें पहले प्रॉपर्टी हमारी क्या थी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, एडिटिव आइडेंटिटी थी, एडिटिव इनवर्स था, और विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सिर्फ दो प्रॉपर्टी थी, एसोसिएटिव थी और लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होती है तो ये कम्यूटेटिव रिंग हो जाएगा। अगर इसमें आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 आ जाती है तो वो ग्रुप क्या होगा, उस ग्रुप को हम क्या कहेंगे, रिंग, सॉरी नॉट ग्रुप, रिंग, रिंग विथ यूनिटी। रिंग विथ यूनिटी कब होगा, जब उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होगा विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब देखेंगे सेट ऑफ रियल नंबर्स या रेशनल नंबर्स इंटीजर फॉर्म अ रिंग विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, दीज आर द कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। अब ये इजीली आप चेक कर सकते हैं, रियल नंबर्स विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लिकेशन, एंड रेशनल नंबर इंटीजर। कैसे चेक करेंगे, पहले विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन हम क्या करेंगे, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, इनवर्स, ये हम ग्रुप में कर गए हैं। अब विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सिर्फ दो प्रॉपर्टी होगी, एसोसिएटिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव, ये दोनों सेटिस्फाई होती है तो रिंग हो जाएगा। अगर कम्यूटेटिव है तो कम्यूटेटिव रिंग, अगर मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी आती है तो क्या हो जाएगा, रिंग विथ यूनिटी। अब सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स ये क्या है, ये रिंग तो है मगर कम्यूटेटिव रिंग है मगर विदाउट यूनिटी, क्योंकि इवन इंटीजर में 1 नहीं आता, इसके लिए रिंग है मगर इसमें यूनिटी नहीं है। अब जैसे let A be set of all m by n matrices over integer, it can be seen that m form a ring with unity, क्योंकि 2 by 2 मैट्रिक्स में होंगे तो इसमें आइडेंटिटी भी होगी, तो ये क्या हो जाएगा, मैट्रिक एडिशन एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये रिंग विथ यूनिटी होगा मगर कम्यूटेटिव नहीं होगा, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैट्रिक्स में ओबे नहीं होती। अब सेट ऑफ इंटीजर मॉड्यूलो 7 जिसमें एलिमेंट क्या होते हैं 0 से 6 तक, ये भी रिंग बनाएगा एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। और द सेट ऑफ all continuous function where all the set of real number a form a ring under addition and multiplication, ये भी हमारे पास रिंग बनाता है। और the set of integer, इसको कहते हैं Gaussian integer, z of i set of all element of a plus iota b form। याद है कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखते हैं, a plus iota b में, where a b belongs to set of integer, मगर कॉम्प्लेक्स नंबर में a b belongs to रियल नंबर होता है, मगर यहाँ पे a b किस में बिलोंग करता है, इंटीजर में कहता है, इसके लिए इसको गॉसियन इंटीजर कहते हैं, और ये भी रिंग बनाता है विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एंड सेट ऑफ नॉन एम्प्टी सेट, x क्या है, नॉन एम्प्टी सेट, एंड p ऑफ x क्या, पावर सेट, जितने भी पॉसिबल सेट्स होते हैं of x form a ring under addition and multiplication defined here। मींस एडिशन कैसे डिफाइन है, a प्लस b करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, a गुणन b माइनस a इंटरसेक्शन b, और प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, ये अगेन 2 by 2 मैट्रिसेस है, उनकी प्रोडक्ट यहाँ पे डिफाइन हुई है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये भी हमारे पास रिंग बना रहा है, इसकी प्रोडक्ट चेक कर सकते हैं। अब देखें ये एलिमेंट हमारे पास लेट r is 0 a b c एंड हियर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, इसकी दोनों की कैली टेबल बनाई है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। और ये भी क्या है हमारे पास, नॉन कम्यूटेटिव रिंग है और विदाउट यूनिटी है, इसमें यूनिटी भी नहीं है और एक कम्यूटेटिव भी नहीं है, तो ये भी हमारे पास क्या है, रिंग है, नॉन कम्यूटेटिव रिंग है।
ठीक है, ये चीजें regarding to group, subgroup, cyclic group and rings. ठीक है बेटा, अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो